A very warm good morning to one and all present here. On behalf of Elixir Foundation, UNICEF India, National Service Scheme, and Ahmedabad Management Association, I welcome you all to Gujarat Climate Action Summit 3.0. Today is 5th June, that is World Environment Day. અને આજનો દિવસ આપણા બધા માટે આ ઘનઘોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને પોલ્યુશનની સામે જેની જે લડત છે એના માટેનો બહુ ખાસ દિવસ છે. ટુડે સ્ટેન્ડ્સ ફોર એક્શન, અકાઉન્ટેબિલિટી એન્ડ અવેરનેસ. અને આ જે એફર્ટ છે એના માટેનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગ્રુપ છે એ છે મારા અને તમારા જેવા મેગી અને લેટ નાઇટ કોફી ઉપર સર્વાઈવ કરતા યુથ, એટલે કે હું અને તમે. અને હવે તમારી વાત કરી જ લીધી છે તો તમને એક સિમ્પલ પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. શું તમે આજ સવારે બ્રશ કર્યું? ટૂથબ્રશ પ્લાસ્ટિક, દૂધની થેલી પ્લાસ્ટિક, એની સાથેનો ઓરિયો બિસ્કિટનું પેકેટ પ્લાસ્ટિક, એચએલની કોફીનો ગ્લાસ પ્લાસ્ટિક, ઝોમેટો, સ્વિગી, ફ્લિપકાર્ટ પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક. The way we have surrounded ourselves with plastic and the casuality of the entire situation, શું આપણે ક્યારે વિચારવા માટે ઊભા રહ્યા? And that is where the problem begins. जब यूसेज हैबिट बन जाए और हैबिट कभी चखी ना हो. આપણી આ જે જનરેશન છે ને એના માટે એક નામ છે, વી આર કોલ્ડ ધ પ્લાસ્ટિક જનરેશન. અને भारत अकेला 26,000 टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है एक सिंगल दिन में, एंड इन अ ईयर द फिगर क्लाइम्स टू 24 lakh tons. And what's wild is that Gujarat stands at the helm of it as well in plastic consumption. Microplastics, એવા પ્લાસ્ટિકના કણો જે આપણે જોઈ પણ શકતા નથી, એ હવામાં છે, પાણીમાં છે, સમુદ્રમાં છે, and yes, it's in your bloodstreams right now. And that is something that's concerning. But here's the twist. આપણું ગુજરાત આનો સોલ્યુશન લાવવામાં પણ સૌથી આગળ છે. જાત જાતના ઇનોવેટિવ મોડલ્સ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પરના સ્ટોરી ટેલર્સ અને મારા તમારા જેવા ચેન્જ મેકર્સ, दैट इज़ व्हाट गुजरात स्टैंड्स फॉर टुडे. इसीलिए आज का समिट एक ऐसी जगह पर है जहां गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स, एनजीओ एंड स्टूडेंट्स सभी लोग एक टेबल पर हैं. So whether you're here as a speaker, whether you're here as a volunteer, a listener or a change maker, let this be a day जो आपको कुछ feel करा कर जाए. Because this planet does not need saving. We do. Once again, स्वागत છે આપનું ગુજરાત ક્લાઇમેટ એક્શન સમિટ 3.0 માં. Let's make this day count. To begin this event, I invite all of the dignitaries on the stage. I invite Mr. Kunal Shah, Manager of Programs for CSR Youth Initiatives and Communications at Elixir Foundation. I invite Dr. Narayan Gaonkar, OIC CFO and Health Specialist for UNICEF Gujarat. And I invite Dr. Kamal Kumar Kar, Regional Director for Regional Directorates at NSS Ahmedabad, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. To begin this entire discussion, I would request Mr. Kunal Shah for the welcome address and to felicitate our further speakers. Thank you so much, Dev. Good morning, everyone. નાસ્તો કર્યો ને? ગુડ મોર્નિંગ. ગ્રેટ. મારી સામે એનએસએસના વોલેન્ટિયર્સ હોય અને આટલું બધું યુવા હોય તો આટલી ધીરેથી ગુડ મોર્નિંગ મને જરાક ગમતું નથી. એટલે વન્સ અગેન ગુડ મોર્નિંગ. એન્ડ લેટ્સ મેક ધીસ અ પ્લાસ્ટિક ફ્રી મોર્નિંગ ઓલ્સો. સો thank you, and once again welcome all of you to the Gujarat Climate Action Summit 3.0. This is the third edition of this, started in 2023. So we are really very thankful to our partners, UNICEF India, National Service Scheme, Ahmedabad Management Association, this year's partners, Ahmedabad Global Shapers, Indian Institute of Sustainability, Central Bureau of Communication, Regional Office Ahmedabad. So all these have supported in making this summit a success, and especially to the young people, NSS ના તમામે તમામ વોલેન્ટિયર્સ, સ્કૂલ્સમાંથી આવેલા દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓ જેઓ કદાચ 11th અને 12th માં છે અને ટૂંક જ સમયમાં કોલેજમાં આવશે અને એક્શન આઇટમ્સ કદાચ અત્યારે પણ કરી રહ્યા છે, એકેડેમિશિયન્સ, NGO પાર્ટનર્સ અને મારા તમામ સાથી મિત્રો.
આજનો સમિટ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લાઇમેટ चेंज 10 वर्ष पहला कि 5 years अगो अगर आप लोग न्यूज़पेपर खोलते तो शायद इतनी सारी न्यूज़ क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं होती जितनी की आज हो रही है. आज अब जितनी भी बार न्यूज़पेपर खोलते हैं उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है. और क्लाइमेट चेंज स्पेशली प्लास्टिक्स, वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब की बात हो रही है. बट फिर भी वाई इट इज़ नॉट बीन टैकल्ड? द मेन रीज़न इज़ मारे शू. इसमें से कितने लोग आज 2 व्हीलर पर आए? ओके, थैंक यू. मारे शू मुझे क्या? लेट मी नरेट दिस इनटू अ वेरी सिंपल स्टोरी. दिस इज अ मेटाफोरिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल स्टोरी. ठीक है, जस्ट इमेजिन, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी. इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ. लेट्स इमेजिन वन पर्सन. ठीक है, कॉलेज के बाद हम सब दोस्त जाते हैं. ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके किसी भी ग्रोसरी स्टोर से चिप्स के पैकेट्स लेते हैं और बॉटल, पानी की बॉटल खरीदते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की रीयूजेबल बॉटल्स नहीं होती है, इसलिए हम पानी की बोतल खरीदते हैं. अब सोचिए कि वो 10 रुपये की पानी की बोतल हम जब खरीदते हैं, उसको पीने के बाद हमने कचरे के डब्बे में फेंकने की कोशिश की, पर कचरे का डब्बा पूरा भरा हुआ है, इसलिए वो बॉटल कहीं ना कहीं बाहर निकल गई और बाहर गिर गई. अब सोचिए कि जब बारिश आती है या तो बहुत तेज़ हवा आती है, तो वही कचरे, वही जो बॉटल होती है वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में चली जाती है. ठीक है, और वही ड्रेनेज सिस्टम उसको लेकर कहाँ जाता है? हमारे साबरमती नदी में. साबरमती नदी से पास होते 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 वो अरेबियन सी में जाकर मिलता है. नाउ इमेजिन, आपकी ये जो बॉटल है वो हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके किसी आइलैंड पे जाके अटक जाती है और वहां पे एक पूरा प्लास्टिक का माया जाल बन जाता है. वहां के लोग बहुत खुशहाली से जी रहे थे, पर अब नहीं जी पाते बिकॉज वहां पे मछलियां नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज पानी का जो तापमान है वो प्लास्टिक की वजह से इतना सारा इंक्रीज हो गया है कि ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं एंड बार बार आइलैंड पर फ्लड्स आते रहते हैं. और ये मैं कोई भी विजुअल स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड दिस इज हैपनिंग इन रियल. आप ऑनलाइन सर्च करके जाइए, आप फिजी ले लीजिए, आप मालदीव्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप मालदीव्स ले लीजिए, आप किरबिट ले लीजिए. बहुत सारी ऐसी आइलैंड्स है जो बिकॉज हमने अपना प्लास्टिक अच्छी तरीके से सेग्रीगेट नहीं किया और उसको कचरे के डब्बे में नहीं डाला, उसके वजह से वो माइक्रो प्लास्टिक में बनता है और वहाँ के किसी टर्टल को, वहाँ किसी स्पीसीज को एंडेंजर्ड कर देता है. एंड स्टिल हम यही कहते हैं कि मारे शू. जस्ट इमेजिन, हमारी जो भी हैबिट्स यहाँ पे हम करते हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूर किसी और को भी अफेक्ट करते हैं. बट ये तो हुई नेगेटिव साइड, बट आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव बिकॉज आज हम इसलिए इकट्ठा हुए बिकॉज 2023 में जब से हमने ये क्लाइमेट एक्शन समिट चालू किया है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि दे आर नाउ टर्निंग इनटू लाइक डूइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. भले चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो. लास्ट ईयर भी हमने ये जो समिट की थी तब 400 जितने NSS के वॉलंटियर्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद भी अपनी स्कूल, अपनी कॉलेजेस में बहुत सारे डिफरेंट कैंपेन्स चलाए. तो सोचिए कि अगर हमारा एक प्लास्टिक हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है, देन टुडे इज़ द डे कि हम वो सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चालू करें ताकि हमारी वो प्रैक्टिस भी 1000 किलोमीटर दूर किसी को इंस्पायर कर सके. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ यंग पीपल. बिकॉज आज हम एक इंस्टाग्राम जनरेशन है, एक सोशल मीडिया जनरेशन है, और वही सोशल मीडिया जनरेशन के थ्रू हमें वही सोशल मीडिया का यूज़ करके और अपने सारे अवेयरनेस के टैक्टिक्स यूज़ करके और हमारे एक्शंस यूज़ करके सिर्फ ये दिखाना है कि दैट वी कैन डू. एंड दैट इज़ द होल पॉइंट. आज आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करने का मतलब एक ही है, हमें सिर्फ आपको समझाना है. आप यू आर ऑलरेडी टेकिंग एक्शंस, वी जस्ट वांट टू गिव यू अ डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में अगर हम काम करें तो ये चीज़ सबसे अच्छी तरीके से हो सकती है. एंड दैट इज़ वॉट द यंग पीपल कैन डू. सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज राउंड ऑफ क्लॉज फॉर यू ऑल कि आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आए, वरना वैकेशन के टाइम पे बिस्तर में से उठना वो बहुत ऐसा अघरा लगता है, मेरे को पता है. ठीक है, बट थैंक यू once again. Dignitaries on the dais, Dr. Kamal Kumar Kar sir, who is a patron, he is a beacon of change and always supporting us. Like I am
myself an NSS volunteer, so since 2013 he has been my mentor. So thank you Kamalkar sir for all the support. Dr. Narayan sir, Nagesh sir is here, and the whole UNICEF team for always supporting this initiative. Since last 5 years, we partner with UNICEF and do all such activations and campaigns. So thanks to UNICEF Gujarat Field Office as well for always supporting us. And to all the young people, I hope કે આજનો દિવસ આપણે બધા ફક્ત ને ફક્ત સાંભળીશું નહીં. બે વસ્તુ થઈ શકશે આ રૂમની બહાર જઈને. આ રૂમની બહાર જઈને આપણે કાં તો કોઈ પણ ગ્રોસરી સ્ટોર ઉપર જઈને પાછી 10 રૂપિયાની પાણીની બોટલ ખરીદીશું, કાં તો પછી થોડાક રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરીને એક રિયુઝેબલ બોટલ આપણી સાથે હર હંમેશ માટે કેરી કરીશું. અને આ જે હેબિટ છે એ હેબિટને કેવી રીતના ઇન્કલ્કેટ કરવી એના એ આપણી ઉપર છે અને આખા દિવસ એના વિશે જ વાત કરવાના છે. સો થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ થેન્ક યુ ટુ ઓલ ઓફ યુ ફોર બિંગ પ્રેઝન્ટ. Now, I invite for the special address Dr. Narayan Gaonkar, who is the officer in charge of the Chief of Field Office and Health Specialist at UNICEF Gujarat. Sir. Good morning, everyone. Yeah, thank you, Krunal, for a nice introduction and young champions who are, actually my dear friend who introduced the topic to you. Thank you so much. Respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear young champions, and all the teachers and mentors and supporters who have joined today to mark this special Gujarat Climate Action Summit 3.0. It's a third edition. And on this special occasion of World Environment Day, we, me, my colleague Nagesh, and UNICEF, my team, very happy to join all of you in creating a kind of a momentum. We're already having a lot of work done in this climate action. It's not new. Many of the champions here are already doing great things. Okay, so let's reflect what is that we can do differently and more. So I bring greetings to all of you from UNICEF. UNICEF work for children all over the world, 190 countries, and we try to do lot of work to build the environment which is good for children. And we strongly believe early childhood development very important, small children. And whatever the good qualities you imbibe now up to 19 years, you're likely to carry forward all these good things when you become an adult, responsible citizen. And as all of you know, India is preparing to become a Viksit Bharat by 2047. And Gujarat government has developed an action plan for Viksit Gujarat. Okay, so Viksit Gujarat, by then we become Viksit Gujarat, many of us on the dais and my senior colleagues will be old. Okay, the agenda action will be driven by young people. All of you will be shaping India's vision of becoming Viksit Bharat. Okay, and Viksit Bharat, we are on the way. You see how we are developing as a economically, we are in number 4 position now in GDP. So we are going to overtake many other countries. So, but then when India becomes Viksit Bharat, all of you who are sitting there will be in the responsible positions. So I strongly urge all of you to build a country which is good for not only for your generation but for the generations to come. We should leave this world with a breathable air, good quality water, where all our children, our future generation enjoy. So I really want to thank Dr. Kamal Kumar Kar, Regional Director of Directorate of NSS Ahmedabad, Ministry of Youth and Youth Affairs and Sports. For his gracious presence. As Krunal mentioned, he has been a beacon of support for all the young people to get into social sector actions, and we see him today. Also, I heard they are doing already work on non-communicable diseases, and UNICEF is already there. We'll talk about it a little later. But sir, thank you so much for being here, and your mere presence gives a lot of hope to young people, because the government is here, so we need a response from all the citizens, civil society to join, do a collaborative work. So UNICEF and partners will be happy to be part of this collaboration. Krunal, you have been great support and a good friend, a young friend. But the inspiration, the passion Krunal, Madish, and other people bring is amazing. And they are some of our youth ambassadors from India to go to the rest of the world to tell our story, how we are making a change. Everybody talks about the problem, but can we stand here with some solutions? I have a solutions to offer. When your story becomes very interesting. Okay, so I know a lot of young champions today, you are already in social media, or sometimes you are in the field, and we get to know your stories.
And my colleagues from Alexa Foundation, my friend Madesh, they keep giving us more information who's doing what. Okay, these stories are really amazing. So thank you for leading action your own level. Okay, the story of islands. There are more stories. I will also give you. We have a music ambassador, Riti Cage. Riti Cage has very beautiful videos and stories with nice music. How islands are shrinking. How people are suffering because of our irresponsible action. Okay, the change begins with me, with you, with all of us together. Okay, so thank you so much, our Nagesh and my colleagues who actually made it happen, with the collective actions. So I'm really happy to be here. Dear friends, the young people should be the future, and you are the future, and we stand with you to build a dream. Okay, for yourself and for future India. Okay, my colleague, one of my good friends in ministry, donor affairs, he takes a session to young people on designing life. Okay, I request you, you design your life, what you want to be, but at the same time contribute to the society. So today, actually, I would like to, as from UNICEF, recognize the climate change issue. This is not an issue of environment. Actually, this is a child right issue. We have a right for survival. No, so every child deserves to breathe clean air, drink safe drinking water, and live in a healthy environment. And our strategies are, what we are promoting and talking today are fully aligned with Mission Life. Our Honorable Prime Minister launched in Kevadia along with Secretary General of United Nations. Okay, it all began in Narmada, Kevadia. So our whatever we are talking should be completely aligned, and it is aligned with Mission Life. So we are very happy that we are driving the change in a positive direction. Today's theme talks about be it plastic pollution, but there are many other areas. Today we also have a program called Healthy Environment for Healthy Child in UNICEF. We find it strange. The lead poisoning. Lead is again another heavy metal entering the body. Can anybody guess what is the level of poisoning? How many children, if there are 10 children, how many will have this lead toxicity? Any wild guesses? 10 people, children are there, how many will have a toxic level of lead in the body? Just 6, 8. It's 5. 50% children in India and 30% people in the globe, children, have a lead level already in the body. He was talking about the problem of island people on remote there. But already we are inhaling a toxic air, lead level is high. If lead enters the body, it makes our blood vessels very hard. Hypertension happens. We have a cardiac diseases. We have a slowness, mental slowness. Lot of problems which you will not recognize because these are actually, all these ill effects will happen slow. They are slow poisons. Okay, so today, plastic, 99% of plastic is made from fossil fuel. I was having an interesting discussion with my colleague Nagesh on the way, and it's extracted from the oil extracts. They make it actually. The plastic break down in the environment and they release, methane and ethylene, very toxic chemicals which are not good for the body at all. And oceans act as a planet's biggest carbon sink. That's what the story of what Krunal explained. And only 9% of the plastic ever produced has been recycled. We say reduce, recycle, reuse, but it's easy to say, but how much easy to do? So can we kind of change this knowledge into a practice? Is something is very interesting. From eco clubs to beach cleanups and zero waste lifestyles, some young people are already driving climate and plastic solutions in their schools and communities. We hear these stories. Okay. And behavior change starts at home. It's in our family daily habits, how we consume, what we consume, how we dispose the waste, and how we conserve resources, and all the change begins at home. How many of you, whom you have, maybe all of you have seen a bottle of water with the expiry date written on it? How many noticed this? Expiry date written on a bottle. Do you think water expires? So what is the expiry date? Anybody can tell me? Please. So it is the expiry date of the bottle, means it reacts with the water after a brief period of time. Yeah, and very good. And actually the bottle, plastic bottle, releases the chemical, and it releases more if the bottle is exposed to high temperature.
So if you are carrying a water bottle by some reason and you leave it in a car and car get heated 40 degree plus and then the release becomes faster. So it's a cumulative exposure of the bottle to the heat which releases the chemicals which actually the microplastic and chemicals enter your body. I'm a doctor and we have an infertility specialist now. They say the microplastic entering the testicles of the boys and causing infertility. I'm just giving one example. It is entering all over, many parts. So it damages the body and this plastic is very difficult to dispose of from the body if it enters. Okay. So from UNICEF, we are excited to share that our partners, Alexa Foundation, Ahmedabad Management Association, Ahmedabad Global Shapers, we have launched the digital campaign, My Green Habit. How many of you are aware of My Green Habit campaign? There are a couple of people, and my colleagues will tell more today during the discussion. We want you to popularize this campaign and more impression, more likes, so you will get to know more about this during the day. Okay. Carrying the reusable bags and bottles to segregating waste, refusing single-use plastic, and influencing and inspiring your friends, your family can do a lot of good to to create a big impact from the world free from plastic. At least reusable, minimizing, and other things. I've seen a lot of good examples. Social media, those who follow social media, I think, how many of you have social media accounts? Oh, so nice. And I hope you have a good number of followers. Okay. And my friend Madish tells me, Kumar tells me, actually there is a nano influencer, micro influencer, macro influencer, and impact influencer. So I don't know, you may be very nano, you make a micro, macro, and then impact influencer. Hey, can you tell me one or two names, impact influencers? Like Pankti Pandey from then Malar Kalambe, they are environmental. Yeah, he will tell more. And Kumar, you can tell us more about the impact influencer. So, but the catch here is, what you learn today is going to benefit you and your families, okay? And you become a hero or a big star, and a lot of people follow you, what you say. So we want you to say good things, correct things, and information verified by proper sources. Don't say whatever comes in WhatsApp. WhatsApp library is not a great library. Okay, it can give you, but you have to check the references before you forward or check. So this is important. So our partners are making a good change. So My Green Habit, hashtag My Green Habit, follow. Okay, and we also would like to have a lot of technical sessions today. I don't want to take much more time. We have very interesting panel discussion today. It talks about plastic, planet, and people, community-led models that work. We have esteemed faculty and experts, young champions joining the panel. And the second one is youth leading the change, stories of young climate change makers. What did they do? How did they do? And how do they sustain? How it will take to a larger scale. These are something which we want to learn. And partnerships and community-led actions are very important. Actually, I keep talking to our Alexa young partners that this is important to talk our story, but can I ask you next year, आप कहाँ तक पहुँच गए? It is not one time, one day social media event, but it's kind of a sustained engagement. So we would like you to also bring change in the community and document it and and share it so that larger knowledge sharing can happen. Together we are fostering Gujarat Climate Change Forum, a community-led action and inspiring the change that actually resonates across cities and villages in Gujarat. We want that you all carry this message and educate your family and community. And today is very important day, World Environment Day. There's a big event happening. Our Chief Minister is committing some actions. Probably you can read in social media today. Nagesh will be also joining this event. It's in Mahatma Mande, the big event. Okay, so big or small doesn't matter as long as in your right direction. So we can do what is possible at our level. So UNICEF stands firmly with you, with all of you, the way we were doing in the last couple of years. We promise our support to nurture your mind, thoughts, your thoughts can be processed and, you can take more action and you can check back with us whenever you are in a doubt. You can directly reach us or
partners and government support from Ministry Youth Affairs is with us. Thanks to NSS for this. And I thank all the partners and all the young people for being here. And we are curious to learn from you. What are that new things you have done last year, or maybe year before? Those are coming for the first time. And I wish the proceeding every success, and really looking forward to build a stronger collaboration. Young people, you should always tell us. Last meeting when I was with young people, they said nothing for us without us. You don't take action without talking to us. So today, my colleagues Nagesh and all the senior people also will share some ideas. These ideas actually are to consult you. If something bothers you, we should consult you to solve that problem, not taking decisions separately. So the consultation and participation should go hand in hand. Okay? So I really thank you for the vacation time for some people, but you are here. It shows your energy, enthusiasm, and willingness to learn more. Wish you all the best, and we stay committed to support the cause. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Let's applaud for sir and his inspiring words. And more importantly, sir, thank you to UNICEF for believing in the power of the youth. And just as you said, I'd like to promise you that the solution to climate change and solution to plastic pollution lies right here in this room with us. For the keynote address, I'd like to invite Mr. Kamal Kumar Kar, who is a regional director for National Service Scheme in the Ministry of Youth Affairs and Sports for the Government of India. Please welcome him with a huge round of applause. सभी को नमस्कार. Dr. Narayan, Krunal, my colleagues from NSS Regional Directorate, from Gujarat University, Nagesh ji, Manish ji, ladies and gentlemen and young friends. कुछ ज़्यादा कहना नहीं है. एनएसएस के मित्रों और तमाम युवा मित्रों, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे ये प्रूफ करता है कि आज की युवा देश के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए कितना चिंतित है. अगर आपके अंदर वो चिंता नहीं होती तो आज आप यहाँ नहीं बैठते, किसी दूसरे जगह पे बैठते, अपने दोस्तों के बीच गप्पे मारते, या कहीं पे रील बनाते, या कहीं पे अपने वर्चुअल वर्ल्ड में होते. जो सबसे बड़ी चिंता की विषय है आज की तारीख में कि युवा धीरे धीरे अंतर्मुखी होता जा रहा है. एक दूसरे से बात करना नहीं है. हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देते हैं. मैसेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है न कि बात करने में. भले एक ही क्लास में है, आगे लाइन में, पीछे लाइन में है, उठकर उससे पास में जाके दो शब्द बोलने के बजाय हम व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, मैसेज खेलते हैं. हकीकत है, सच्चाई है. और आप लोग, अभी डॉक्टर नारायण जैसे कह रहे थे, मैं उसी टाइम में सोच रहा था कि क्या बात किया जाए आपसे, क्योंकि मैं कभी कुछ तैयारी के साथ नहीं आता कि आपके सामने ये बोलूँगा. ये डाटा, ये स्टैटिस्टिक्स, ये फिगर्स, ये बड़े बड़े लोगों की काम है. हम तो युवाओं के साथ बैठते हैं जो इनकी इस आंकड़े की ज़्यादा मायने हमारे लिए नहीं है. ठीक है, जो रिजल्ट आती है वो बताता है कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है या क्या होगा. लेकिन युवा होने के नाते मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर रहा हूं या मैंने क्या किया. मित्रों, जब थोड़ी सी भी समय मिले, आप अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं. खुद को विश्व की एक पार्ट है. हम हमें छोड़ के दुनिया नहीं है. तो हम थोड़ा सा अपने बारे में सोचे जो विश्व केंद्रिक है.
क्या हमारे छोटी सी एक्शन कुछ चेंज ला सकता है? अब उस स्टोरी के ऊपर आते हैं जो कृणाल ने स्टार्ट किया, उसके साथ एग्जाम्पल डॉक्टर नारायण ने जोड़ा, उसके साथ मैं एक छोटी सी बात आपके साथ जोड़ता हूँ। पानी की बोतल बहुत छोटी सी चीज है। आप में से कितनों ने उस बोतल को, ठीक है मैं मानता हूं कि हमने कहीं दूसरे जगह पे डाल दिया, उसका डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं हुआ, वो कहीं दूसरे जगह पे पहुंचा, पॉल्यूशन हुआ, उसको हम नकार नहीं सकते, एग्री। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक मिस यूटिलाइजेशन भी होता है। उस प्लास्टिक बोतल कलेक्ट होकर रीयूज तो नहीं होती है, दोबारा रिफिल होकर मार्केट में आता है। आप मानते हैं इसको, नहीं मानते हैं? हाँ या ना? तो उसको ना होने के लिए आपने क्या किया? कितनों ने वो काम किया है? हाथ उठाएंगे। ये दर्शाता है कि जो युवा हमारे मंत्रालय के युवा मित्र हैं, एनएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, ये दर्शाता है कि वो कितना कंसर्न है समाज के लिए। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो मित्रों, ये छोटी सी बात है। ट्रैफिक अवेयरनेस की दुनिया भर की बात होती है जो इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जर्शन होती है, पॉइजनस गैस आती है, सब कुछ होती है। जितने लोग बताते हैं उतने से कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? आपको मैं ये टास्क देता हूं, बीइंग युवा और देश की जागरूक युवा होने के नाते, जो भी आपको ज्ञान दे उससे आप पूछिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं क्या? आप कार पुलिंग करते हैं क्या? जबकि आपने देखा होगा एक आदमी के पीछे 10 कारें चलती है। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम किसी को टीका करना हमारा काम नहीं है, बट दिस लीड्स टू व्हाट? हमारे कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होने चाहिए। वी डोंट वांट प्रीचर्स, क्योंकि आजकल तो फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप कॉलेज, कुछ भी नाम दें, ज्ञान इतने हैं कि पता नहीं चल रहा है कि इसमें से इतना इंफॉर्मेशन आ चुका है हमारे पास कि उसमें से इन्फॉर्म्ड, वी आर इन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म्ड, ये क्लियर कट कोई डिफरेंस ही नहीं है। इससे पहले कम से कम तो क्लासरूम में टीचर को हम मानते थे कि टीचर जो बोल दिए वो सच्चाई है, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। अब सच क्या है, सही इंफॉर्मेशन क्या है, गलत इंफॉर्मेशन क्या है, उसको फिल्टर करने के लिए और एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मित्रों, इस जो कहते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन जो हो रहा है अभी, क्योंकि मैं खुद, जैसे मैं करीबन जैसे गुजरात की बात करें तो 2 लाख युवाओं के साथ जुड़ा हूं, इससे पहले 40 लाख युवाओं के काम भी देखता था, तो थोड़ा सा कम माइक्रो लेवल पे आ गया कि आप लोगों के साथ बात करें। कि मैं सोचता हूं कि सही क्या है, हमको कोई तो बताए कि सही क्या है। मित्रों, आपकी प्रेजेंस इस हॉल में दर्शाता है कि आप सही के खोज में आए हुए हैं। कि मैं जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना यूज करूंगा या करूंगी, सम कॉन्क्रीट, सम प्रोडक्टिव आउटपुट शुड बी देयर। अगर कुछ अच्छी चीजें मैं नहीं ले पाऊंगा तो मेरा ये समय की बर्बादी है। तो मैं जो भी यहां पे बात करेंगे, आप ये मत सोचिए कि आपको ही बता रहे हैं करने के लिए। हम ये मान के चल रहे हैं यू आर द एम्बेसडर। आप एम्बेसडर है अपने ग्रुप की, अपने पीयर्स की। जो आपकी 10 दोस्त आपके साथ यहां पे आज नहीं है, कल जब आपके साथ बैठेंगे,
आप उनको ये 2-4 चीजें बताइए, छोटी छोटी बातें, कुछ बड़े चीज करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र सेवा करने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ बनाए तब जाके राष्ट्र सेवा होता है, मैं ये नहीं मानता। मेरा अपना ये ओपिनियन है। अगर रास्ते में हम चल रहे हैं, इधर उधर नहीं थूक रहे हैं, तो ये राष्ट्र सेवा है। रास्ते में नियम को पालन करें, ट्रैफिक रूल की हम फॉलो करें, सामने वाला क्या करता है नहीं करता है वो कोई मतलब नहीं है, हम कम से कम पालन करें, ये राष्ट्र सेवा है। कभी कभी मैं कॉलेज में मित्रों से बात करता हूं, वहां पे एक सवाल पूछता हूं कि आपके कॉलेज में 2 व्हीलर कितने हैं और हेलमेट कितने हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये बात कर सकते हैं कि अगर 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों हेलमेट पहने, जो पीछे बैठता है और जो आगे चलाता है। 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट, अब तो पीछे जो बैठते हैं उनके भी सीट बेल्ट की बात होती है। हमारे यहाँ पे तो हम तो आगे की नहीं लगाते, पीछे की बात तो छोड़िए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हेलमेट नहीं पहनते हैं 2 व्हीलर चलाते हुए, 4 व्हीलर चलाते हुए बेल्ट नहीं लगाते हैं। चलो अब तो जो ड्राइविंग करते हैं उसने तो ज़बरदस्ती लगाना शुरू हो गया है, बट जो साथ में बैठा है पैसेंजर वो बहुत कम लगाता है। यहाँ तक कि कभी कभी हम बैठते हैं तो अगर गलती से, क्यों हमारा आदत तो है, तो ड्राइवर ही बोलता है क्या ज़रूरी है, नहीं चलेगा। और ख़ास करके अभी तो जो कैब्स हैं उन्होंने ज़बरदस्ती फंसा के रखा है फुल थ्रू, ताकि वो आवाज़ नहीं करे गाड़ी। इंडिकेटर जो कंपनी ने बनाया कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आवाज़ करेगी, दिस सीट बेल्ट लगाए, दिस इज द वार्निंग। तो उसको बंद करने के लिए एक लगा दिया उसके अंदर क्लिप कि वो आवाज़ नहीं करेगा। तो हम जुगाड़ कर दिए किसके लिए कि नेगेटिव कैसे लाएं, पॉजिटिव बात तो छोड़िए। तो मित्रों आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप अपने लेवल पे, क्योंकि इतने सोशल मीडिया में आप सब हैं, तो एक छोटी सी पहल आप अपने स्तर से शुरू कर सकते हैं। जो मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें, और जो बढ़िया एग्जाम्पल में आपको 2-3 एग्जाम्पल हमारे मित्रों ने जो किया है, सेट किया है, जो छोटी सी पहल उन्होंने किया, उसके बारे में भी बोलूंगा 1-2 मिनट। कुछ हमारे वॉलेंटियर मित्रों ने जो प्लास्टिक की बॉटल है उसको रीयूज किया। सब कहते हैं रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए, रिड्यूस करिए, रिप्लेनिश करिए, मानते हैं? कैसे करेंगे? हमें कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल उसका भी चाहिए, अलग अलग तरह से कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल सभी के बस का नहीं है। रीयूज कैसे कर सकते हैं, उसके 10-15 एग्जाम्पल तो हमको दो, हम क्या करेंगे। तो जितने मित्र कम्युनिकेशन डिवीजन में हैं, जितने मित्र मीडिया में हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेथड्स, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज बताइए। यू बिकम ए स्टोरी टेलर। एक छोटी सी एग्जाम्पल जो हमारे मित्रों ने किया हुआ है, प्लास्टिक की बोतल को लिया, उसको मिट्टी उसके अंदर लोड किया, पूरा मिट्टी लोड करके उसको चारों तरफ, ट्री के चारों तरफ ट्री गार्ड बनाया। और उसको एक अच्छा सा, क्योंकि आजकल एक नाम अच्छा दी जाती है तो जो दिखता है वो बिकता है, उसने उसका नाम दिया इको ब्रिक। हालांकि वो ब्रिक नहीं है, प्लास्टिक पॉल्यूशन तो है ही, वो तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, लेकिन उसकी यूज इन्होंने सोचा। सिमिलरली कुछ मित्रों ने प्लास्टिक की बोतल में मिट्टी भरकर दीवार बनाई, टेम्पररी बस स्टैंड जो बना, वहां पे सरकार के खर्चे से नहीं, बच्चों ने अपने हिसाब से प्लास्टिक बोतल भर के उसको मिट्टी के अंदर लोड करके उसके दीवार बनाया, बस स्टॉप वहां पर एक बनाया। स्मॉल एग्जाम्पल। मियावाकी स्टाइल ऑफ प्लांटेशन, उसके फॉरेस्ट्री की बात हम करते हैं, कितनों ने उसके एग्जाम्पल देखा हुआ है? हाथ उठाएंगे। अब देखिए इतनों में 1-2 हाथ उठे, दैट मीन्स इट क्लियरली शोज
कि हम ज्यादा से ज्यादा बात तो करते हैं लेकिन वो है क्या पता नहीं है। हमारे एक एनएसएस यूनिट ने उसी पैटर्न में प्लांटेशन किया और उसकी जो चेंजेस 3 साल में उन्होंने एक अभूतपूर्व चेंज लाए, उसको डॉक्यूमेंटेशन करके दिखाया। अहमदाबाद में ही है, वीजीसी की कैंपस में, विश्वकर्मा कॉलेज की कैंपस में, सिटी के अंदर। हम बात तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये कौन बताएगा? तो मित्रों, जैसे मैंने कहा कि आपका रोल है यहां पर। यू आर द चेंज मेकर्स एंड नॉट द चेंज मेकर्स, यू विल बी द मैनेजर ऑफ चेंज। हम चेंज मेकर 10 साल पहले बताते थे, अब तो हम हमारे वॉलंटियर्स को बोलते हैं यू आर द मैनेजर। अब मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर या एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कुछ भी है सब आप हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो लैडर कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो मित्रों, आज के दिन एक छोटी सी प्रयास करने के लिए अगर आप प्रण लें तो मैं मानता हूं कि ये हमारा प्रयास सफल होगा। आप में से कितने रील बनाते हैं? हाथ उठाने की जरूरत नहीं, क्यों हो सकता है कि थोड़ा सा झिझक होती है कि आजकल उसको नेगेटिव लाइन में भी दिखा जाता है, पॉजिटिव में भी देखा जाता है, दोनों चीज है। कितनों ने पेड़ लगाए, प्लांटेशन कितनों ने? हाथ रखिए ऊपर, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। उस पेड़ के बढ़ते हुए पेड़ के साथ कितनों ने सेल्फी लिया है? कितने साल? 2 साल, 3 साल? अब ये देख लीजिए रेस्पॉन्स। कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कार्यक्रम है कि हम पेड़ लगाएंगे, 30 लाख पेड़ लगाएंगे, 30 लाख पेड़ लग गई, 30 दिन के बाद वहां पे 3 पेड़ भी नहीं है। हकीकत है, क्योंकि कागज में जितने पेड़ लग चुका है, दुनिया में उतने स्क्वायर इंच जमीन भी अवेलेबल नहीं है पेड़ लगाने के लिए। लेकिन हकीकत में क्या है? पेड़ है ही नहीं। तो मित्रों, जैसे पहले मैंने कहा था, वी आर नॉट हियर टू ब्लेम। हम वो ब्लेम गेम दूसरे के लिए छोड़ दो, हमारे काम नहीं है। तो क्या हम एक ही पेड़ लगाएं और उसके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दें? कैसे? आप उसके साथ सेल्फी लीजिए। जैसे बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे उसी पेड़ के साथ पहले साल मैं और मेरे लगाया हुआ पेड़ वो इतना सा छोटा सा है, दूसरे साल वो थोड़ा बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। तो ऐसे करते करते जब 10 साल में इतना बड़ा पेड़ होगा, उसके नीचे मैं खड़ा हूं, और 15 साल के बाद मैं और मेरा बच्चा उसी पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो उस स्टोरी बनाइए एंड यू प्रमोट दैट स्टोरी। अब देखिए उसमें आप समाज में क्या इंप्रेशन छोड़ेंगे और आपको क्या सुकून मिलेगा और कितना मजा आएगा। और जब सोशल मीडिया में इस तरह की हजारों स्टोरी जाएगी, इट विल बिकम ए कल्ट। तो क्या हम ये कल्ट क्रिएट कर सकते हैं? ये तो युवाओं की रिस्पॉन्स नहीं है। कर सकते नहीं कर सकते? तो मित्रों, सबसे आखिर में सरकार की एक पहल जो आप ही के लिए है, और मैं मानता हूं कि आप में से काफी लोग उसमें हैं। माई भारत में कितने लोग अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं? यस, काफी मित्र हैं। नारायण जी, दिस इज वन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोर्टल is created called My Bharat, मेरा युवा भारत. In that every youth of the country are welcome to register. 15 से 29 साल तक कोई भी युवा उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया में डालते हैं ना, वैसे उस पोर्टल में भी आप अपने काम को शो कर सकते हैं. और जो तीसरी चीज है अभी चल रहा है, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. आज की तारीख में इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट गुजरात में 5,500 इंटर्नशिप ओपन किया है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के थ्रू.
तो उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो हमारे मित्र उसके अंदर जुड़े और उस काम को देखें। नॉट ओनली पोस्टल डिपार्टमेंट, उसमें फाइनेंस है, उसमें बैंकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, उसमें हेल्थ एंड हाइजीन है, उसमें जन औषधि केंद्र है, और उसमें देयर इज ए चांस टू पोस्ट द अपॉर्चुनिटी बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आप लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी उसमें यू जॉइन दैट प्लेटफॉर्म एज पार्टनर्स एंड सो एंड एक्सटेंड द अपॉर्चुनिटी टू द यूथ ऑफ गुजरात, टू द यूथ ऑफ द कंट्री टू वर्क विथ यू पीपल। आपके साथ युवा मित्र काम करें, ताकि हम जब जाके बात करें उससे पहले कोशिश हम करें कि 1000 लोगों को उसको चीज़ पता है। जैसे मैंने सेल्फी कहा कि 3 साल की कंपैरेटिव सेल्फी हम लेंगे, तो अगर हम ये चीज़ 100 मित्र इसको करेंगे तो आप किसी दूसरे को बोलने से पहले उसको मालूम पड़ेगा, हाँ ये आपने किया है, ये मुझे मालूम है। तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। किस लिए? जो युवा मित्र है, लेट ऑल द यूथ शुड बी इन्वॉल्व इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। जैसे मैंने सबसे पहले पूछा था कि रिसाइकल तो करना है, रीयूज तो करना है, बट कैसे? देयर शुड बी सर्टेन एग्जांपल्स। तो इसीलिए भारत सरकार ने यह कहा कि नहीं, सारे विभाग की बात अलग है, युवा विभाग जो युवा कार्यक्रम विभाग है उन्होंने कहा नहीं, युवाओं को कुछ करना है तो ये करना है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, उन्होंने उसमें कैसे न्यूज रीडर बनना है उसके लिए इंटर्नशिप दिया है। हालांकि गुजरात में नहीं है बट दूसरे स्टेट्स में, एंड वी आर ट्राइंग कि गुजरात में भी हम शुरू कराएंगे। न्यूज रीडर कैसे बनना है, एंकर कैसे बनना है, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। और आखिर में आपसे मेरा ये निवेदन है कि आपको क्या चाहिए ये भी आप हमको बताइए, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए देते हैं, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों की फीडबैक, आप लोगों की इंटरेक्शन के साथ ही उसको हम देते हैं। तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि सरकार को बताने के लिए कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या होना जरूरी है। हो सकता है कि आप जो कहेंगे हूबहू वो नहीं होगा, लेकिन वक्त आएगा कि जो आप चाहते हैं वही होगा, दुनिया वही करेगी जो आज की युवा चाहेगा। तो मित्रों, आज के पावन दिन है, धरती माता की दिन है, और एक पेड़ माँ की नाम कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है आज 2.0 जो कि लॉन्च हो रहा है। तो अपने लिए ना सही, अपनी मम्मी के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएंगे, और अगले साल जब हम वापस आएंगे 3.0 की जगह 4.0 में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जो यंग फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे कुछ 50-60 सेल्फी की एक एग्जीबिशन करेंगे कि 1 साल के बाद हमने इतने सेल्फी यहाँ पे क्रिएट करे। कर पाएंगे? सो लेट्स होप फॉर ए बेटर एंड सेफर एंड ए पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड। थैंक यू। जय हिंद। सर, आपने जो कुछ भी बातें कही हैं उनके लिए खूब खूब आभार। मैं मानता हूँ कि हम सभी लोगों ने इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ जाना है, कुछ ना कुछ समझा है। और एक जो बात आपने कही रिगार्डिंग यूथ एम्बेसडरशिप और कैसे हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करके क्लाइमेट चेंज को रोकने की जो प्रयास है उसको एक कल्ट में फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट रियली स्टूड आउट। एंड मैं तो मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSS का जो पूरा काम है दैट रियली डज मेक एन इम्पैक्ट, क्योंकि मैंने भी अपने माँ के नाम पे एक पेड़ उगाया है। सो coming up for our opening address, I'd like to invite Mr. Umesh Dixit, the Executive Director of Ahmedabad Management Association, the venue that we're sitting here. Please come on the stage, sir, and please welcome him with a huge round of applause. Thank you, friends. It is an opening session, but I was late. थोड़ा घर का environment बिगड़ गया था. Finally, I'm here, Manish ji, Kunal ji, Dr. Kar, Dr. Narayan, all the distinguished guests and students. Many things have been told by the dignitaries.
लास्ट ईयर भी यही इवेंट हुई थी, इस साल भी यही इवेंट यहाँ पे है, और जैसे साहब आपने बताया अगले साल भी यहाँ पे होगा। सेल्फी अगर लेनी है तो कैंपस में बहुत सारे पेड़ हैं, उसी को अपना मान लीजिए और सेल्फी ले लीजिए, और दोपहर को जाने से पहले सर को सेल्फी दिखा दीजिए। एटलीस्ट आज के दिन में घर जाने से पहले सेल्फी तो हो जाएगी, राइट सर? पेड़ चाहे यहाँ पे हो या आपके घर पे हो। सो इसके ऊपर से मुझे याद आया, इन लास्ट 3 years this campus, many of you must have been coming here, though it was called a green campus, many trees and many plants were here, but पिछले 3 साल में हमने इस कैंपस में जो प्लांट्स पहले थे उससे डबल प्लांट्स ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। आप पेविलियन की साइड देखेंगे, आप पीछे पार्किंग के साइड पे देखेंगे, साइड में देखेंगे, सभी जगह पे जो पहले थे उससे ज़्यादा कर दिए हैं। सो एक एक एक्शन लेने से भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा कुछ नहीं करना है, बट अगले साल तक एक एक्शन भी लेंगे तो भी बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। पूरे साल विद द डायरेक्शन ऑफ माय प्रेसिडेंट हमने फोल्डर्स और पेपर्स के ऊपर काम किया। मीटिंग में बहुत सारे फोल्डर यूज़ होते हैं, पेपर्स यूज़ होते हैं, ऑनलाइन अगर दे देते हैं फिर भी एक पेपर हाथ में दे देते हैं। सो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थी ऑफिस के ऊपर दैट वो पेपर और वो फोल्डर्स के ऊपर हमें कंट्रोल लाना है। ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड, बट कंट्रोल तो कर सकते हैं। सो जब कंट्रोल किया तो पूरे साल में शायद 3 से 4 लाख रुपए के पेपर की कॉस्ट बच गई, बैलेंस शीट बहुत अच्छी लग ली। तब जाके मालूम पड़ता है कि पूरे साल में हम लोग फेंकने के लिए 3 से 4 लाख रुपए के पेपर यूज़ करते थे, आज भी पेपर यूज़ करते हैं। आई विल नॉट बी हिपोक्रेटिक और आई विल नॉट बी आइडियलिस्टिक, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी आर इंडिविजुअल, वी आर इंस्टीट्यूशन, बोथ। You as an individual or I as an individual has got a lot of difficulties and challenges. Institutions also do have that challenges for the acceptance of certain things. But at the same time, जो चीज़ possible है वो अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। This year there is a new initiative. Our infrastructure is going more and more digital. वहाँ पे भी paper use हम कम करेंगे। But at the same time, people other side of the corner will say digital environment तो pollution ही है ना। So there is no scope of us to be 100% sure, but at least paper save तो कर रहा हूँ। environment के लिए already मैंने पेड़ उगा दिए हैं। So as an institution, if at all sir I am supposed to report it to you, आप दूसरी बार आए हैं, मैंने ये 2 काम कर दिए हैं as a AMA। जो पॉसिबल है वो करिए, और शायद कम से कम वॉट आई एम फॉलोइंग आई एम टेलिंग यू, जो सर ने बोला प्रीचिंग की बात नहीं है, स्टूडेंट्स हो या एडल्ट्स हो, पानी की बोतल घर पे आधी भरी हुई कितने लेके जाते हैं, और उसका यूज़ क्या होता है फिर? सो गूगल कर दीजिए कितने सारे देश पूरे दुनिया में पानी की वजह से प्रॉब्लम में है। अगर आपका पानी का ग्लास जो आपको मिलता है वो पूरा पी लेंगे या आधा भर के आधा पी लेंगे तो भी अगले साल तक शायद आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया वो एक काम पूरी दुनिया में काम आएगा। जो थाली आप खाते हैं कितना सारा हम फेंकते हैं, गूगल कर लीजिए कितने सारे देश हैं जहाँ पे खाना नहीं मिलता है। सो अगर आप अपनी डिश में परोसा हुआ खाना पूरा कर लेते हैं तो आप अपना भी भला करते हैं, और अगर फेंक देते हैं तो पूरी दुनिया का भला नहीं करते हैं। अगर ये 2 चीज़ आप अपने ओर से कर सकते हैं, अगले साल कमिटमेंट के साथ डॉक्टर कार और डॉक्टर नारायण, मनीष जी, कुणाल जी को आप एडवांस में आके बता दीजिए ये एक काम हमने किया है, तो बार बार ये सुनना अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ या ना? ये क्या बार बार सुनने का, ये करो वो करो। 9:30 बजे आके बोल दो ये कर दिया है। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे तो अच्छा नहीं लगता है बार बार सुनना, बिकॉज लास्ट ईयर भी सर ने हमें बताया था, इस बार भी आ गया हूँ, घर का एनवायरनमेंट संभल गया है इसलिए मैं दौड़ते भागते यहाँ पे आ गया हूँ। अगली बार जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट ये हमारा कमिटमेंट है सर। एम इज़ विथ यू, ऑल द पार्टनर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस टुडे, यू ऑल हैव अ गुड लर्निंग, गुड एक्सपीरियंस, and whatever best you can do that one thing for the whole year and see the whole world will bless you. Thank you very much.